Dear students, I hope you are enjoying all the sessions of Easy English Learning. उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहेंगे और आसान तरीके से अंग्रेज़ी सीखने का जो मौका मिला है उसका आप फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वक्त में जो नए वीडियोज़ है वो वक्त पर आप तक पहुंच सके। Students, in this session we will learn how to write appreciation of a poem of standard 10th. First of all, we have to understand that this activity is asked for 5 marks in our activity sheet, and before writing the appreciation of the poem we have to understand the poem thoroughly. पोएम को हमें शास्त्रीय तौर पर समझना ज़रूरी होता है, तभी हम उसका अप्रिसिएशन सही तरीके से लिख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द ट्विंस। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पोएम इन शॉर्ट, इन ब्रीफ। दिस इज अ पोएम which creates humor. In this poem, the poet expresses his feelings, whatever he faced because of resemblance with his twin brother. The poet was born twin, and because of likeness with his brother, he faced a lot of difficulty. In the first stanza, poet says that because of similarity in look with his brother, people always remain confused. They failed to recognize them. In second stanza, one can't stop laughing when the poet says that at the time when they were born, because of resemblance, the nurse mixed them and replaced them with each other. Even by mistake, poet was given his brother's name and brother was given his name. In third stanza, it is said that the poet got punished whenever his brother make a mistake. In next stanza, we come to know that due to resemblance, the poet's bride became his brother's wife, and at the end, when the poet died, people instead of the body of the poet buried his brother's John. So this is very humorous poem. Now how to write appreciation of this poem? First of all, we have to write the title. The title of the poem is The Twins. इस पोएम का सबसे पहले हमें टाइटल लिखना है, और ऑलरेडी टाइटल जो है पोएम में दिया होता है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट वी हैव टू कॉपी द टाइटल फ्रॉम द पोएम. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द ट्विंस. नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू राइट नेम ऑफ द पोएट और पोएटेस. सो एट द एंड ऑफ द पोएम द नेम ऑफ द पोएट और पोएटेस इज गिवन. हियर द नेम ऑफ द poet is Henry Shamrock Leigh. This is the name of the poet. Now next point is rhyme scheme. Next point जो है वो होता है we have to write rhyme scheme. Rhyme scheme लिखना भी बहुत easy होता है, आसान होता है. हमें सिर्फ करना यह है कि we have to read the lines of the stanzas. stanzas की जो lines है वो हमें पढ़नी होती है, और हर एक लाइन के आखिर में जो वर्ड होता है उसको साउंड के मुताबिक हमें अल्फ़ाबेटिकली उसको टाइटल देना होता है. तो इसमें जब हम देख रहे हैं कि जो राइम स्कीम है वो है A B C D. ऐसा इसलिए है कि ये जो लास्ट वर्ड है यहाँ पर दिए हुए, जब उसको हम रीड करते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि उसके जो साउंड क्रिएट हो रहे हैं उसके मुताबिक हमने इसको जो अल्फ़ाबेटिकली टाइटल दिया है, तो उसके मुताबिक पहला जो वर्ड है उसको हमने टाइटल दिया A, दूसरा जो है B, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट साउंड क्रिएट कर रहे हैं.
और तीसरी लाइन का जो वर्ड है वो पहली लाइन के आखिरी वर्ड से साउंड मैच कर रहा है, इसलिए हमने वापस उसको नाम दिया है ए। इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स हम नोट डाउन करेंगे। सो राइमिंग वर्ड्स ऑफ फर्स्ट स्टांजा एंड दिस इज द राइमिंग वर्ड ऑफ second stanza. In this way we will write rhyming words. Now next is figures of speech. Figures of speech is very important. फिगर्स ऑफ स्पीच पर हम एक डिटेल्ड वीडियो जो है बनाकर एक नया सेशन उसके ऊपर स्पेशली जो है वो अपलोड करेंगे, जिसमें तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच पर हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फिगर्स ऑफ स्पीच आर दोज विच आर यूज्ड बाय द पोएट टू मेक द पोएम इम्प्रेसिव and attractive. In this poem, figure of speech is alliteration. We have to write one or two figure of speech. First is alliteration. In form and feature, face and limb. ये जो लाइन है ये alliteration के एग्जाम्पल है। Why? The sound of letter fo is repeated for poetic effect. इस लाइन में हम देख रहे हैं कि in form and feature, face and limb, इन तीन वर्ड्स में एफ जो है वो हर एक वर्ड में बिगिनिंग में यूज़ हुआ है, जो कि साउंड फो क्रिएट कर रहा है। सो इट इज़ एलिट्रेशन। इसी तरीके से रिपीटिशन। माई ब्रदर जॉन गॉड क्रिश्चियन मी एंड आई गॉड क्रिश्चियन हिम। इन दिस लाइन द वर्ड क्रिश्चियन इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। इसमें जो है वर्ड क्रिश्चियन 2 मरतबा जो है वो रिपीट हुआ है। तो अगर किसी लाइन में वर्ड से रिपीट हो रहा है उसे हम कहेंगे रिपीटिशन, फिगर ऑफ स्पीच, और अगर साउंड रिपीट हो रहा है बिगिनिंग साउंड तो उसे कहेंगे एलिट्रेशन। सो इन दिस पोएम देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच विच आर यूज्ड। फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन एंड सेकंड वन इज रिपीटिशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फेवरेट लाइन. It is very simple. We just have to copy the lines which we feel that these are our favorite line. वो लाइन्स जो सिर्फ हमें कॉपी करना है, कोई भी 1 या 2 लाइन हम कॉपी कर कर लिख सकते हैं. नाउ हाउ टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. हमें जो है सेंट्रल आइडिया या उसकी थीम लिखनी होती है. रिमेंबर, यहाँ पर ये याद रखिए कि वी हैव टू राइट सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम इन आवर ओन वर्ड्स. हमारे अपने अल्फाज में लिखना होता है. डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द पोएम. पोएम में जो लाइन्स दी हमें वो एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है. देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोएम थॉरोली. हम पोएम को उसको समझना ज़रूरी होता है, तभी हम जो है उसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं. हियर द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम इज़ दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस एंड फनी पोएम. हेनरी एंड जॉन आर ट्विंस. हेनरी और जॉन जो वो ट्विंस है. द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पोएट बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर जॉन आर शेयर्ड इन अ वेरी लाइटर वे. द कन्फ्यूजन ऑफ नेबर्स, रिलेटिव्स and the teacher expressed by the poet is create a lot of humor in the poem. This is the central idea of this poem. So in this way we can complete the appreciation of the poem. जब appreciation of the poem हम write down करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा. First of all the title, the twins, then name of the poet, Henry Sembrook Leigh, next rhyme scheme, and next alliteration, figure of speech, then favorite lines. We have to write favorite lines, and at last theme or central idea of the poem. In this way we can write appreciation of a poem. Now pause the video and write down अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द ट्विंस. और इसी तरीके से जो अदर पोएम्स आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसके भी अप्रिसिएशन आप नोट डाउन कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए.